चलिए अब फर्स्ट क्वेश्चन के बाद मैं आपको अभी सेकंड क्वेश्चन कराती हूँ। ये आपका एनसीईआरटी का सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब डैश 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 n क्यूब इक्वल्स टू n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, राइट। 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब डैश 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 n क्यूब इक्वल्स टू n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। तो अगेन स्टूडेंट, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में लिया था, जो आपका क्वेश्चन है उसको हम लेंगे एज अ स्टेटमेंट। सेम वे, let Pn be the statement. Here you will notice that again the variable is n. So we are selecting n as the variable in the statement. So let Pn be the statement. Then what you have to write? Pn double dot. Write down the question as it is. Right? Then as in the first question, we'll write step 1. Step 1 में what you have to do? Put n equals to 1. यहाँ हम लिखते हैं put n equals to 1. So wherever you see n in this step, you will write it as 1. So Pn will becomes P1 double dot. Now look at the last term of the LHS in which n is appearing, and it is n cube. So what you will do, you will put n equals to 1. So what will becomes 1 cube. Similarly in the right hand side, put n equals to 1. So wherever you see n, you put n equals to 1. So this becomes like this, n 1 plus 1, sorry 1 bracket 1 plus 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर ना। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। दिस विल बिकम 1 इंटू 2 का होल स्क्वायर, सो दैट बिकम्स 4, और 2 का होल स्क्वायर अगेन 4, सो 4 cancels and you will get 1. So LHS is also 1, RHS is also 1. So this is a true statement. So this is the first step which we have followed. What was the second step? I told you, let PK be the true. Let PK be true. Then what you have to do, wherever you have n in the question, you will put it as equal to k. So this statement Pn will becomes Pk, and LHS wherever you have n, you will write down k. Similarly in the RHS wherever you have n, you will put it as k. So this Pn statement now changes to Pk type. So this is your equation number 1. This was your second step. Let Pk be true. Then what I told you in the third step, then we will prove in the third step, this is step number 3, we shall prove that Pk plus 1 is true whenever Pk is true. So what you have to do in this case, या आप Pk वाली statement लीजिए, wherever you have in the left hand side, in place of k you will put Pk plus k plus 1. Now come to this side, this is 1 cube plus 2 cube plus 3 cube डैश 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 k क्यूब. ये वाला पूरा एक्सप्रेशन आपने एज इट इज़ लिखना है. इसमें जो नया टर्म जो आएगा प्लस 1 प्लस करके, इन दैट दिस k टर्म, दिस लास्ट टर्म ऑफ pk wherever k is appearing, it will get replaced by k plus 1. So what will this k cube will become? It will become k plus 1 का होल क्यूब. तो आपने क्या करना है, pk plus 1 वाले एक्सप्रेशन में जो आपका pk वाला एक्सप्रेशन है उसमें सारे टर्म्स एज इट इज़ लिख दीजिएगा आप लेफ्ट हैंड साइड का, प्लस जो एक एडिशनल टर्म ऐड होगा वो आपने किस तरह से ऐड करना है, वॉट एवर k term is appearing in the pk statement, that k will get replaced by k plus 1. So it was k cube, so here you will put k plus 1 का whole cube, right? अब similarly in the right hand side, wherever k is appearing, you will substitute it by k plus 1. So this k will become k plus 1, and this k plus 1 become, k को आप substitute कीजिए, k plus 1 plus 1. So I write k plus 1 plus 1, right? And rest of the terms are as it is. ठीक है. अब आपको इस चीज़ को प्रूव करना है कि दिस LHS इज इक्वल टू RHS. सो वी विल पिक अप द LHS. तो हमने ये LHS को उठा लिया, ये पूरा एज इट इज़ लिखा. ठीक है. अब इस LHS में आप देखिए जो इतना वाला पार्ट है, यहाँ से लेके यहाँ तक इतना वाला पार्ट, लुक एट दिस इक्वेशन नंबर 1. व्हाट डू यू फाइंड? दिस पार्ट इज सेम एज PK. Look here, this is PK. 1 cube plus 2 cube dash 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 k cube. This is 1 cube plus 2 cube plus 3 cube dash 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 k cube. तो ये पूरा आपका क्या है? PK. So this will
एंड व्हाट इज पीके, इसका एलएचएस जो है पीके का वो आपका एज इट इज ही है। इसका आरएचएस आप देखिए, यहाँ से आप सब्स्टिट्यूट करेंगे ये वाले पार्ट में, ठीक है। तो व्हाट इज योर आरएचएस, सो यू सब्स्टिट्यूट फ्रॉम 1, ये वाला पार्ट आपने सब्स्टिट्यूट फ्रॉम 1 कर देना। तो दिस मच, these many terms will become k plus 1 upon 2 का whole square, this is from equation number 1 and the remaining term will remain as it is, ठीक है। अब आपको इस LHS को इसके RHS के इक्वल शो करना है। अब आप इसके RHS पे फोकस कीजिए, इसमें जितने भी टर्म्स आप देख रहे हैं न्यूमरेटर में देयर आर इट इज़ अ फैक्टर ऑफ 2 टर्म्स, वन इज k plus 1, द सेकेंड इज k plus 1 plus 1 और डिवाइड बाय 2 तो है ही है। तो अब ये आपका क्या है, यहाँ पर अगेन यू सी देयर आर 2 टर्म, दिस इज 1 टर्म प्लस दिस इज सेकेंड टर्म। सो इन ऑर्डर टू मेक इट एज अ सिंगल टर्म व्हाट वी विल डू, यू विल टेक द एलसीएम ऑफ दीज 2 टर्म्स। सो दिस इज द सेम वे यू विल टेक द एलसीएम एज वी डू इन द सॉल्विंग ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है। अभी 2 और 1 का एलसीएम, अच्छा उससे पहले हम इसका स्क्वायरिंग कर देते हैं। ये ऑलरेडी होल स्क्वायर हो रखा है, एक्सपोनेंट्स के रूल आप यूज़ करेंगे, ये पूरा जितने भी टर्म्स आप अंदर देख रहे हो एवरी टर्म विल गेट स्क्वायर्ड अप। सो एंड बीच में एक मल्टीप्लाई साइन है, सो k विल बिकम k स्क्वायर, k plus 1 विल बिकम k plus 1 होल स्क्वायर एंड 2 विल बिकम 2 स्क्वायर विच इज़ 4 एंड दिस इज एज इट इज़। अब आप ले लीजिए एलसीएम, 4 और 1 का एलसीएम हो गया 4, ठीक है। अब सेम वे एज वी डू द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ fractions, so 4 divided by 4 gives you 1 into this numerator part will give you this term as it is, बीच में प्लस है, अगेन यू राइट ऑन प्लस। सो 4 डिवाइड बाय 1 गिव्स यू 4, 4 इंटू दिस न्यूमरेटर विल बी लाइक दिस, ठीक है। तो ये हमने इसका एलसीएम लेके ऐड करा। अब आप आ जाइए नेक्स्ट स्टेप पे। अब ये आपको जो 2 टर्म्स दिख, हाँ यहाँ देखिए, ये आपके जो 2 टर्म्स आप देख रहे हैं, यहाँ पर आप k plus 1 होल स्क्वायर और k plus 1 होल स्क्वायर दोनों टर्म्स में से आप कॉमन निकाल सकते हैं। तो ये चीज़ हम कॉमन निकाल लेंगे। आप नेक्स्ट स्टेप पे आ जाइए। हाँ यहाँ हमने निकाल लिया है कॉमन, k plus 1 का होल स्क्वायर कॉमन निकाला, ठीक है। और यहाँ फर्स्ट टर्म में से आपका k स्क्वायर आ जाएगा और सेकेंड टर्म में से 4k plus 4, ठीक है। इसमें आप ऐसे कर लीजिए इसको 4, ये एक्चुअली ऐसे बनेगा आपका 4k plus 1 का स्क्वायर तो हमने बाहर निकाल लिया, 4k plus 1 अंदर आ जाएगा, एक स्टेप मैंने और एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, ये एज इट इज़ है, ठीक है। ये आपका हो गया k plus 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू, ठीक है। हमने यहाँ से k plus 1 होल स्क्वायर कॉमन लिया था, तो फर्स्ट टर्म में से k स्क्वायर रिमेनिंग हो गया और सेकेंड टर्म में से ये देखिए 4 और एक k plus 1 रह गया, ठीक है। उसी को हमने अब नेक्स्ट स्टेप में इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा के ब्रैकेट को खोल दिया, तो दिस बिकम्स k स्क्वायर प्लस 4k plus 4, राइट। हाँ अब आप देखिए ये तो आपका k plus 1 होल स्क्वायर हो गया। ये आपको कौन सा, अगर आप उसका मिडल टर्म स्प्लिटिंग करें या फिर आप डायरेक्टली भी देख सकते हैं, ये a plus b होल स्क्वायर का आइडेंटिटी बन रहा है। आप मिडल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे तो उसके 2 फैक्टर्स बनेंगे, तो वन विल बी k plus 2, अदर वन विल सेकेंड factor will also be k plus 2. तो actually this is an expansion of k plus 2 का whole square. तो this can be replaced by k plus 2 whole square. ठीक है। अब आप यहाँ पर आप देखिए जो आपका RHS पे फोकस कीजिए, जो आपको लाना था, इस 2 को I can write as 1 plus 1, ठीक है। अब मैं आपको RHS दिखा देती हूँ। ये देखिए क्वेश्चन में ये था आपका k plus 1, k plus 1 plus 1 upon 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आप यहाँ आ जाइए, आपको ये मिल गया यही सेम एक्सप्रेशन, k plus 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4 को आई कैन राइट एज 2 स्क्वायर, राइट। अब यहाँ से आप देखिए ये वाला टर्म भी स्क्वायर में, ये वाला टर्म भी स्क्वायर में और डिनोमिनेटर इज ऑल्सो इन द स्क्वायर, सो आई कैन रिमूव द स्क्वायर फ्रॉम ईच एंड एवरी टर्म एंड पुट अ बिग ब्रैकेट एंड राइट डाउन होल स्क्वायर। सो दिस पार्ट वी आर डूइंग बिकॉज the same form I want to show as RHS which is in the PK plus 1 form. तो आप यहाँ जैसे फोकस कीजिए, आप यहाँ देखिए PK प्लस में आपका ये चीज़ लाना था, तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा एडजस्टमेंट करने के लिए, इसको सेम लाने के लिए एडजस्टमेंट करा आपने इसको होल स्क्वायर कर करके। अब आप देखिए आपका RHS आ गया, ठीक है। तो आपका LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव हो गया। तो जहाँ LHS इक्वल टू RH प्रूव हो जाएगा PK प्लस 1 में, तो इट मीन्स दैट PN इज ट्रू। व्हाट इज योर PN? दिस वॉज योर question itself कि this is statement. What statement? The question itself is your statement. So this PN is true for every value of n. Right students? I think you have followed it.